स्टॉक इन्वेस्टिंग सुनते ही आपके मन में कुछ ऐसे ख्याल आते होंगे, गैम्बलिंग, कसीनो, गहरी खाई, डरावना डाकू, हाई रिस्क। लेकिन रियल लाइफ में स्टॉक इन्वेस्टिंग सिर्फ एक रास्ता है टू ग्रो योर वेल्थ। अब इस तरह से समझ लीजिए कि हम सब तो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसी सक्सेसफुल बिजनेस में हम एक स्मॉल ओनर बन सकते हैं थ्रू बाइंग शेयर्स ऑफ दैट बिजनेस। सोचिए, आप मैगी हर महीने खरीदते हैं, शायद मैगी नहीं तो नेस्कैफे, नेस्कैफे नहीं तो मैगी केचप। अब अगर आप सिर्फ नेस्ले के कंज्यूमर ही नहीं बल्कि उसके एक स्मॉल ओनर बनना चाहते हैं तो आप नेस्ले के शेयर्स खरीद सकते हैं। फन फैक्ट, अगर आपने नेस्ले के शेयर्स 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे होते 1990 में, तो कैन यू गेस हाउ मच दैट वुड बी टुडे 30 years later? 10 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs? No, it would have been approximately 3 crores. Yes, you heard it right. 1 lakh in 1990 would have been worth 3 crores today. Now, if you told me, Neha, I did not have 1 lakh rupees in 1990. So, here's another plan. हर महीने जब आप नेस्ले की मैगी खरीदते हैं, अगर आप हजार रुपए करके नेस्ले के शेयर्स accumulate करते हैं, all the way from 1990 till now, even then you would have hit 3 crores. Point I'm making is that the share market has the potential to create wealth even beyond what we can imagine. Now that you're excited about getting invested and growing your wealth, I'm going to share with you 3 steps to get started in stock investing as a beginner. लेकिन आगे बढ़ने से पहले let me introduce myself. I'm Neha Singh, founder of Womanista, and I'm sharing these tips on how to get started with managing your money for all the women out there who want to become financially independent. हम हर हफ्ते वीडियोस रिलीज करेंगे on different topics like budgeting, investing and many more. Tell me in comments what you would like us to talk about. हमारी वेबसाइट चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर चेकआउट करिए। तो बात करते हैं पहले स्टेप की। As a beginner investor, what is that first step that I must take? तो first step है अपने risk appetite को manage करना, right? And what is the method or a tip to start with that? I suggest start small with an amount जिसको आप लूज करने पे बुरा फील नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी सैलरी की 5% कह सकते हैं कि आई विल ट्राई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक्स विद जस्ट 5% ऑफ माई सैलरी। मतलब अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं हर महीने, तो आप सिर्फ 1,000 रुपए से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू की। थिंक ऑफ दिस लाइक एन इन्वेस्टमेंट टू लर्न how to build your wealth through stocks. ये आप कैसे कर सकते हैं? Very important to note. You can start by buying just one share of a company that you like. For example, you might be a very happy customer of HDFC Bank, right? And you might be thinking, what if I want to invest in HDFC Bank as a stockholder? You can buy one share of HDFC Bank by investing just approximately 1,300 to 1,400 rupees. That's it. So उतना ही रिस्क हमें लेना है। Supposing आपको मेकअप का शौक है and you use Lakme products or you use Dove for your personal hygiene, you can look at buying one share of Hindustan Unilever at just 2,200 rupees. सिर्फ इतना ही रिस्क लेके स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट tip, very important, is that you start small. Start with an amount that you're comfortable risking. Think of this as an investment to learn about stock market. Start small and think of it as an investment to learn. अब पैसे कहाँ से आएंगे और कितने इन्वेस्ट करेंगे वो तो हमें पता चल गया, लेकिन what is the second step? इमेजिन करिए आपको ड्राइविंग नहीं आती एंड आपको जाना है अपनी लोकेशन से अपनी फ्रेंड के घर जो शायद 10 किलोमीटर दूर। आप कैसे जाएंगे? Will you just pick up a car and start driving? Of course not. You'll probably hire a driver. Similarly, अगर हमें अभी स्टॉक इन्वेस्टिंग अच्छे से नहीं आता, हम बिगिनर हैं, तो क्या जरूरी है कि हमें डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए? Maybe not. What we can consider is handing our money to an expert जो जानते हैं which stocks to pick. This type of investment product is called an equity mutual fund. जी हाँ, mutual funds के बारे में आपने सुना होगा. So mutual funds in simple manner क्या करते हैं? They take your investments, your savings, and a fund manager who is an expert in handling stock market or other assets like bonds, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपनी रिसर्च के हिसाब से। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहें, सो यू कैन कंसिडर लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, विच मीन्स यहाँ रिस्क
थोड़ा कम है। अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आप थोड़ी टैक्स सेविंग भी कर लें, यू कैन लुक एट ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जिनमें 3 साल का लॉक इन होता है और ये भी प्राइमरीली मेनली इन टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स चूज करने के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? स्टार्टिंग विद म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो काफी टाइम से हो, काफी क्रेडिबल हो। आप उस स्कीम की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि वो कितनी कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्म करती आई है। और जरूरी है आप चेक करिए कि कहीं इसके एक्सपेंसेस ज्यादा तो नहीं, क्योंकि वो आपके रिटर्न को इम्पैक्ट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक म्यूचुअल फंड्स पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि किस तरह से यू कैन चूज योर ओन म्यूचुअल फंड्स, तो प्लीज 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 राइट टू मी इन कमेंट्स एंड वी विल कम अप विद अ वीडियो सून इनफ। थर्ड और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डाइवर्सिफिकेशन। अब ये टर्म तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन इसका एक्चुअली मतलब क्या है? एक बहुत फेमस कोट है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज या कम करना चाहते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट फंड्स और डिफरेंट स्टॉक्स which belonged to different industries. ये क्यों करना जरूरी है? हो सकता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल सिचुएशन, से कोविड के टाइम ट्रैवल और होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी एंड फार्मा इंडस्ट्री स्टॉक्स स्टार्टेड डूइंग वेल। अब अगर आपके पोर्टफोलियो में दोनों ट्रैवल और टेक्नोलॉजी होता तो आपका पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड या बैलेंस्ड पोर्टफोलियो माना जाता। इनफैक्ट बहुत फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बुफे कहते हैं कि इन हिज लाइफ टाइम ही हैज इन्वेस्टेड इन मोर देन 400 to 500 stocks, but it's actually just the 10 stocks which have created enormous wealth for him. उस 10 stocks की वजह से आज वो one of the wealthiest investors माने जाते हैं। So diversification is also important because आपकी हर choice, हर stock आपका wealth creating stock नहीं बनेगा। You have to know that it's going to be a few stocks which are going to create a large amount of wealth for you. So be open to diversifying and be open to making some mistakes. So with these 3 steps, आपको ये तो क्लियर हो गया होगा that you don't need to be a PhD or mathematician to get started with stock investing. All you need is to start small, take the help of an expert by going through the equity mutual fund route, and finally, you have to diversify. Don't stick to just 1 or 2 funds or 1 or 2 stocks. Diversify across 7 to 10 funds or stocks. धीरे धीरे आप और कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और आप और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स लेने में कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वुमनिस्ता यूट्यूब चैनल एंड डू चेक आउट द वेबसाइट विद ऑल द अपकमिंग कोर्सेज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल यू women out there. जाते जाते just one thing, remember, if you don't take care of your money, no one else will. I'm Neha Singh signing off. I'll see you soon in another video.